Hello everyone, hope you're all doing good. So today we'll be discussing the second lecture of communication skills. So let's see what we are going to study today. We are going to be talking about the background of writing, in which we will study the types of writing, the types of academic writing, why it is important to write. Other than that, we will be discussing reading, in which we will be talking about finding suitable sources along with developing critical approaches for reading. Let's start with the lecture. Assignment में तुम लोगों को बाद में बताऊंगी what you need to do. Okay. So first of all, हम writing क्यों करते हैं? The purpose of academic writing, not simple writing, academic writing, the writing you do for your you do officially for your academics. पढ़ाई के लिए जो आप writing करते हैं, why you do that? To report on a piece of research the writer has conducted. जो भी आप लोगों ने research की है, in order to report it, in order to tell the audience कि हमने क्या research किया, you need to write it on a piece of paper, for which you do academics writing. Second is to answer a question the writer has been given or chosen. In your case, आपको आपका टीचर जो भी क्वेश्चन देता है, in order to answer that question आपको academic writing करनी पड़ती है. For example, अभी मैंने आपको assignment दी थी to write an essay about yourself, so you had to do academic writing for that. Third reason is to discuss a subject of common interest or give a writer's view. किसी का व्यू पॉइंट बताना हो, एक सब्जेक्ट के ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू बताना हो, अपना दूसरे का कॉमन इंटरेस्ट शेयर करना हो, फॉर दैट पर्पज आप एकेडमिक राइटिंग करते हो. द लास्ट वन इज टू synthesize research done by others on a topic. If you need to tell people that what you are doing, people have already done that. अगर जो आपने research की है, आपसे पहले भी लोग कर चुके हैं, successfully they have done research on that, उस चीज़ को आप बताने के लिए you need proper academic writing in a proper format. वरना अगर आप एक प्रॉपर फॉर्मेट को यूज करते हुए एकेडमिक राइटिंग नहीं करोगे, सो इन द बिजनेस वर्ल्ड, इन द रियल वर्ल्ड, इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, नो वन इज गोइंग टू बिलीव यू. ठीक है, नो वन इज गोइंग टू एक्सेप्ट योर वर्क. सो common types of academic writing. The first common type of academic writing is notes. Notes क्या होते हैं? The one you take in your class. जब टीचर कुछ बोल रहा होता है, you write it down on a piece of a paper for your own convenience, ताकि बाद में तुम लोग पढ़ो तो तुम लोगों को याद आ जाए कि टीचर क्या कह रहा था. ठीक है, it's a written record. Second type is report. A description of something a student has done. For example, conducting a survey. आपको एक फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ स्टूडेंट आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, काम मिला है, जिसपे यू हैव टू डू अ सर्वे ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ मैट्रिक. ठीक है, आपको मैं रिसर्च देती हूँ कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स पे रिसर्च करो कि उनकी हॉबीज क्या हैं. सो यू हैव कंडक्टेड द सर्वे कि उनकी हॉबीज क्या है. नाउ यू हैव टू सबमिट इट टू मी. तो वो लिखाई आप करोगे एकेडमिक राइटिंग की फॉर्म में, इन ऑर्डर टू टेल मी कि यस मैम, ये हमने सर्वे किया है, हमने ये कंडक्ट किया, ये रिपोर्ट निकली है उसकी. सो द रिपोर्ट हैज टू फॉलो अ सर्टेन फॉर्मेट ऑफ एकेडमिक्स राइटिंग, राइट. द थर्ड फॉर्म इज डिसर्टेशन, विच इज योर थीसिस, जो कि आप एंड में करोगे. अभी स्टूडेंट लाइफ में इट्स द longest piece of writing you have to do. It includes almost 20,000 or more words, and अगर आप thesis नहीं करोगे तो आपको डिग्री मिलना मुश्किल होती है, मिलती ही नहीं है. The fourth form is essay. Essay, you have been writing essay since I guess since forever now. अभी आपको असाइनमेंट भी मिली थी essay की. So essay is the most common type of writing work, but your essay has to be formal. It has to follow all the rules which I had already mentioned to you in the first lecture. So I have given you a title to write about yourself, and you wrote the words I mentioned. So essay is another type of academic writing. The last type is project. Project क्या होता है? It's an individual work or maybe it can be a group work, जो कि आपको रिसर्च दी जाती है बाय योर इंस्ट्रक्टर, और आप टॉपिक खुद सिलेक्ट करते हो या टीचर आपको टॉपिक देता है. यू हैव टू राइट डाउन अ होल रिपोर्ट, अ होल प्रोजेक्ट ऑन दैट. इट हैज टू फॉलो अ सर्टेन फॉर्मेट अगेन ऑफ एकेडमिक राइटिंग. सो द फॉर्मेट्स, आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट्स.
कि हर चीज़ को लिखने के लिए, चाहे वो एसे हो, डिसर्टेशन हो, आइदर इट्स अ प्रोजेक्ट और अ रिपोर्ट, यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन फॉर्मेट, राइट? सो there are two types of essays, there are two types of writing, either it's a short writing or it's a long writing. In case of a short writing essay, they are using the word essay, but in case of short report, project, essay or any other और क्या था, report, thesis is not included in the short one. Essay, project, report, in any short form you just have to write an introduction, main body and conclusion. Example can be the essay you just submitted me. ठीक है, you had an introduction where you introduced yourself by starting with a quote. Maybe you told me the main point, the thesis statement. You followed it with secondary statements, and then came the main body of your essay, in which you गाइज टोल्ड मी कि आप अपनी इंट्रोडक्शन में जो आप अपने बारे में लिखते हो उसको एक्सप्लेन करते हो, एक दो एग्जांपल्स देके इंट्रोडक्शन में आप थीसिस स्टेटमेंट देते हो, अपने बारे में मेन बात बताते हो, और मेन बॉडी में उसको एक्सप्लेन करते हो कि मैंने ये चीज़ जो ऊपर मेंशन की है इंट्रोडक्शन में, उसकी एक दो एग्जांपल्स लिखते हो अपने बारे में, अपने आप को फर्दर एक्सप्लेन करते हो, एंड देन इन द कंक्लूजन यू राइट जनरली जो आपने मेन बॉडी और इंट्रोडक्शन में लिखा होता है, कंक्लूजन में उस चीज़ को कंक्लूड करते हो और एक दो चार लाइनों का कंक्लूजन लिखते हो कि मेरी पूरी ऐसे की फाइंडिंग लाइंस क्या हैं, कि मैंने कंक्लूड क्या किया पूरे ऐसे में. ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ एकेडमिक्स राइटिंग. बट इन केस ऑफ अ लॉन्ग फॉर्मेट जिसमें थीसिस आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं बड़े वाले, व्हाट यू नीड टू फॉलो इज यू हैव टू हैव एन इंट्रोडक्शन. ठीक है, देन यू हैव टू हैव अ मेन बॉडी. इंट्रोडक्शन में वही चीजें होती हैं, आपको एक थीसिस स्टेटमेंट देना पड़ता है दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द होल एसे. आफ्टर दैट यू हैव द मेन बॉडी जिसमें आप इंट्रोडक्शन के थीसिस स्टेटमेंट को फॉलो करते हो और सारे पॉइंट्स प्रूव करते हो, एग्जांपल्स देते हो. बट इन केस ऑफ लॉन्ग एसेज और रिसर्च पेपर्स और थीसिस, what you need to do is you need to write literature review. What is a literature review? आपने फाइंड किया, ऑनलाइन रिसर्च की, देखा लोगों ने इस टॉपिक के बारे में क्या लिखा हुआ है, यू नीड टू डू रिसर्च ऑन दैट. लोगों के जो भी उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए होते हैं, यू राइट देयर पॉइंट ऑफ व्यू इन द लिटरेचर रिव्यू by giving referencing. I'll be talking about referencing in the next lecture, but just keep in mind literature review में आप अपना काम नहीं बताते हो, आप लिटरेचर यानी पुराना जो पहले इस टॉपिक पे बात हो चुकी है जितने लोगों ने की है उनके काम को मेंशन करते हो कि इस बंदे ने भी ये बात की थी एंड ही सेड दिस, इस बंदे ने भी ये बात की थी जो मैं कर रहा हूँ एंड ही सेड दिस. ओके, देन यू कैन यू नो कोट एनी केस स्टडी, जिसने पीछे कोई केस स्टडी की हो इस आपके टॉपिक के ऊपर, यू कैन ऑल्सो रिलेट टू दैट. यू कैन देन डू डिस्कशन कि मेरा पॉइंट क्या है, और लिटरेचर रिव्यू में भी इस तरह का पॉइंट दिया है. देन यू डू अ जनरल डिस्कशन कि मेरा और इनका पॉइंट मिल रहा है, सो या आई एम राइट. ठीक है, देन यू राइट अ कंक्लूजन. कंक्लूजन में आप अपना इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और जो आपने मेन बॉडी के अंदर सारा सिंथेसिस किया होता है ऑफ लिटरेचर रिव्यू, केस स्टडी एंड द डिस्कशन, you write it. In the conclusion section, you write that what you have concluded from the whole project. सही है, जैसे आपने conclusion short essay का लिखा था, long essay का conclusion is comparatively longer and it tells you कि आपने आपका जिस्ट क्या है, पूरी रिसर्च में से आपने फाइंडिंग क्या की है. देन यू नीड टू राइट डाउन द रेफरेंसिंग. इन केस ऑफ अ लॉन्ग और शॉर्ट ऐसे रेफरेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप रेफरेंसिंग नहीं करोगे, रेफरेंसिंग फॉर एग्जांपल अगर आपने लिटरेचर रिव्यू में किसी की एग्जांपल दी है, इन द रेफरेंस सेक्शन यू नीड टू टेल कि मैंने ये बात यहाँ से उठाई थी. अगर ऑनलाइन सोर्स था, यू नीड टू गिव अ लिंक ऑफ दैट. अगर आपने न्यूज़पेपर से उठाई थी, यू नीड टू गिव अ लिंक ऑफ दैट. रेफरेंसिंग नहीं करोगे तो आपको आपका प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं होगा, क्योंकि आपका काम पता ही नहीं चलेगा कि आपका काम क्या है और आपने हेल्प कहाँ से उठाई है. Then appendices include all the pictures, the clips, the videos, the newspaper headings, everything जो आपने यूज किया है in your research, आप वो appendices में डाल देते हो. ठीक है, किसी का इंटरव्यू लिया है, क्वेश्चनियर था, सब कुछ appendices में इंक्लूड होता है. सॉरी. So then comes the features of academic writing. कि academics writing में क्या क्या चीजें होनी चाहिए.
ओके हर स्कूल और हर डिपार्टमेंट की अपनी एक फॉर्मेट होता है विच यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू राइट समथिंग. हर टीचर का अपना फॉर्मेट होता है, बट सम बेसिक थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू हैव टू हैव अ सेंटेंस. जब आप कुछ लिख रहे हो तो यू हैव टू मेक अ सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस, इट्स अप टू यू, बट यू हैव टू मेक अ सेंटेंस जिसके आगे फुल स्टॉप आना चाहिए. ओके, कॉमा, फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क्स, ईच एंड एवरीथिंग. देन कम्स द हेडिंग. जिसके बारे में लिख रहे हो उसकी हेडिंग होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल व्हाइल यू आर राइटिंग एन एसे ऑन पाकिस्तान, यू हैव टू गिव द हेडिंग ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, एंड देन इन द सब टाइटल, आप हेडिंग के अंदर सब टाइटल और सब हेडिंग देते हो जिसमें आप फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हो तो पंजाब इज अ सब हेडिंग ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, ऐसे की सब हेडिंग होती है. इंट्रोडक्शन जैसे आप कहते हो, ऐसे के नीचे इंट्रोडक्शन लिखते हो, दैट इज अ सब हेडिंग, दैट इज नॉट अ मेन हेडिंग. उसके बाद पैराग्राफिंग आ जाती है. पैराग्राफिंग की बहुत सी टेक्निक्स होती है. पैराग्राफिंग में क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती हैं. पूरा पैराग्राफ बनाने के लिए एक फॉर्मेट फॉलो करना होता है विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू गाइज लेटर. ओके, some other common features of writing a text is referencing. As I have already told you that if you don't use a reference in your essay, then your essay will not be approved. जैसे आप लोग assignments online छापे मार के submit करवा देते हो, you will get a 0 if you are in some international institution. आपका project ही approve नहीं होता, आपको वो निकाल देते हैं कि आप तो कॉपी कर रहे हो किसी का काम. सो यू हैव टू टेल, यू हैव टू रेफर टू दैट पर्सन जिसकी आप चीजें उठा रहे हो. यू हैव टू मेंशन द साइटेशन. ठीक है, कैसे रेफरेंसिंग करते हैं, दैट आई विल बी ऑल्सो टीचिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. द यूज ऑफ एब्रीविएशन टू सेव स्पेस. कभी कभी बहुत बहुत लंबे वर्ड्स होते हैं जिनको एब्रीविएट करते हैं हम इन ऑर्डर टू सेव स्पेस. फॉर एग्जाम्पल यू राइट इंस्टेड ऑफ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वी राइट लम्स. Instead of London School of Economics, we write LSE, right? So these are the abbreviations. जो कि long sentences, long words की जगह you use their abbreviations. For Kentucky Fried Chicken, we use KFC. That is an abbreviation. Next is italics. Italics अगर आप Microsoft Word भी यूज करो तो italics का फॉर्मेट आता है जिसमें if you are using someone else's work या आप किसी और लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हो या किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हो, then you have to write it in italic format. मतलब वो आपका फॉर्मेट ही चेंज होता है राइटिंग का. अगर आप Microsoft Word में जाओ तो एक आई का नोशन लिखा होता है, वो italic फॉर्मेट होता है. ओके, then you have to use brackets. जब आपने किसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन करना हो तो you use, या किसी को फर्दर किसी चीज की फर्दर इंफॉर्मेशन देनी हो, देन यू यूज ब्रैकेट्स टू क्लैरिफाई योर इम्पोर्टेंट पॉइंट, या इन्फॉर्मेशन जो आपने इंपॉर्टेंट दी होती है उसको क्लैरिफाई करने के लिए यू यूज ब्रैकेट्स. ओके, दीज आर द एडिशनल फीचर्स ऑफ राइटिंग अ टेक्स्ट. Then comes types of sentences. Sentences की types क्या होती हैं? The first feature of writing something is to write a sentence, right? So there are 3 basic types of sentences. One is simple sentence, second one is compound sentence, and the third one is complex sentence. What is a simple sentence? A simple sentence contains a subject and a verb. Subject क्या होता है? Look at the example. The baby cried for food. In this sentence, baby is the subject and it has a verb, cried. It's a simple sentence. छोटा सा एक सेंटेंस है जिसमें पूरी उन्होंने बात मेंशन कर दी है, कंप्लीट एक थॉट बता दी है कि बच्चा रो रहा है. बच्चा is the subject and crying is the verb. It has a sentence and a verb, subject and a verb, so it's a simple sentence. Second type is compound sentence. Simple से next level. Okay. A compound sentence has 2 independent clause. ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसके. फॉर एग्जाम्पल, दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश बट ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश. इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं. ठीक है, मतलब इसमें ही जो है वो डिपेंड कर रहा है, ही इंडिपेंडेंट है. 2 दफा यूज हुए हिम एंड ही के फॉर्म में, एंड डिपेंडेंट क्लॉज एक है विच इज दे. Okay, and other than that, the independent clause is a part of sentence that can stand alone
because it contains a subject and a verb. अब जो independent clause है, he जो है वो independent clause है इसमें, तो they are saying कि independent clause का एक subject होगा और एक verb होगा. He is the subject and verb क्या है इसमें? Spoke, responded. ठीक है, that is the verb. अब इन्होंने क्या किया, कंपाउंड सेंटेंस में बेसिकली होता है कि दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके आप एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हो. इसमें दो सिंपल सेंटेंसेस क्या हैं? दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश एंड द अदर कंपाउंड सिंपल सेंटेंसेस ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश, बट दे हैव जॉइंड द टू बाय सेइंग बट. So they spoke to him in English, but he responded. They spoke to him in Spanish, but they responded in. He responded in English. But is a conjunction, जो कि आप दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हो. इन ऑर्डर टू ज्वाइन टू सिंपल सेंटेंसेस and make one compound sentence, you use conjunction which is for, and, nor, but. It can be any of that. Then comes the complex sentences. What are complex sentences? A complex sentence is an independent clause joined by one or more dependent clauses. Okay, इसमें एक independent clause है and एक दो या दो से ज्यादा dependent clause होते हैं. For example, in the situation below, opinionized women are given disadvantages in societies that privilege men accomplishments. इसमें इंडिपेंडेंट क्या है? सोसाइटी इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं करी, जबकि women and male both are dependent clauses. ओके, सो इसमें दो इंडिपेंडेंट है एंड वन इज द डिपेंडेंट क्लॉज. दो भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बट इन दिस सिचुएशन देयर इज वन डिपेंडेंट एंड टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. एंड द डिपेंडेंट, उसमें सब्जेक्ट भी होता है एंड इट हैज अ वर्ब एज वेल. In order to join them again, they use a subordinator या relative pronoun. In this example, they have used a relative pronoun. Relative pronoun क्या होता है? Who, that, which. You can see they have used that privileged male accomplishment. दूसरे sentence को पहले के साथ मिलाने के लिए they have used that. Okay? So that is complex sentence. ओके, फाइंडिंग सूटेबल सोर्सेज. अगर आपने अपना काम कहीं पे यू नीड टू राइट समथिंग, देन यू नीड टू गिव रेफरेंसिंग. आपको अगर किसी का काम पढ़ रहे हो, यू आर राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू, यू आर राइटिंग एन एसे, तो आपने ऑनलाइन रिसर्च की है टू राइट एन एसे. ठीक है, उसके लिए आपने टेक्स्ट बुक यूज किया या कोई भी फॉर्मेट यूज किया वोकैबुलरी लेने के लिए, रेफरेंस लेने के लिए, कोई स्टाइल यूज करने के लिए, या कॉम्प्लेक्स लॉन्ग सेंटेंस बनाने के लिए सूटेबल सोर्सेज ढूंढते हो आप. ठीक है, आप किन फॉर्मेट से सूटेबल सोर्सेज कहाँ से ढूंढ सकते हो? देयर आर टाइप्स of text from which you can extract your references. What type of text these are? Textbook. आप अपनी बुक के अंदर से पढ़ सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो कि मेरी बुक में ये लिखा हुआ है, so I am using that. But you have to mention it in your report कि मैंने ये चीज़ यहाँ से उठाई है, अपनी टेक्स्ट बुक से उठाई है. You use a website, you do online research जिसमें आप मेंशन करते हो कि आपने जो भी, फॉर एग्जांपल आपको जो असाइनमेंट दी होती है वो आप वेबसाइट से उठा के किसी से छापे मारते हो ना. सो आप अगर मेंशन, वो तो आप मेंशन नहीं करते हो, लेकिन जनरली रेफरेंसिंग करने के लिए, रेफरेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग. इफ यू आर कॉपिंग इट फ्रॉम अ वेबसाइट, यू नीड टू मेंशन कि मैंने इस वेबसाइट से ये टेक्स्ट उठाया है. देन कम्स द जनरल आर्टिकल. ठीक है, देयर आर सेवरल आर्टिकल्स. जैसे जैसे आप आगे जाओगे, यू विल नीड टू राइट आर्टिकल्स, यू नीड टू स्टडी आर्टिकल्स. आर्टिकल होता है जब एक फॉर्मल किसी ने रिसर्च की होती है, अपनी रिपोर्ट को वो ऑफिशियली एक आर्टिकल की फॉर्म में लिखता है. न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आर्टिकल्स होते हैं, ऑनलाइन भी काफ़ी आर्टिकल्स होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं लोग. सो यू नीड टू मेंशन देयर रेफरेंस कि मैंने इस बंदे की बात उठाई है, आर्टिकल उठाया है, यहाँ से उठाया है. इंटरनेट पे भी बहुत से सोर्सेज हैं, जैसे गूगल स्कॉलर पे बहुत आर्टिकल्स होते हैं, जे स्टोर पे बहुत से आर्टिकल्स अवेलेबल आपको मिल जाते हैं, फ्रॉम विच यू गेट द नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट यू आर राइटिंग. देन ऑफिशियल रिपोर्ट. अगर आपने, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गिवन अ सिचुएशन टू राइट अबाउट पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में, लास्ट ईयर की इकोनॉमिक सिचुएशन उठा लोगे
कि ऑफिशियल रिपोर्ट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या था पिछले साल, तो वो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से सारी रिपोर्ट मिलेगी, बट यू नीड टू मेंशन दैट कि मैंने ये इस वेबसाइट से रिपोर्ट उठाई है। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर और मैगजीन आर्टिकल। आप आर्टिकल मैगजीन से भी उठा सकते हो, जैसे हसन निसार न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखता है। यू नीड इफ यू आर मेंशनिंग एनीथिंग said by Hasan Nisar, you have to mention his name, you have to give his reference in your report. Then comes the e-book यानी ऑनलाइन बुक, अगर बुक्स आप टेक्स्ट बुक भी हो सकती है और वो ई बुक भी हो सकती है, यानी आप वेबसाइट से बुक्स उठाते हो। ओके, सॉरी। So now comes the assignment. What you need to do is that पहले आपने जो फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको 3 बताई हैं, यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, यूज ऑनलाइन सोर्सेज, मुझे रेफरेंसेस भी देने हैं साथ में, ठीक है। रिसर्च करो कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देन राइट 5 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप, 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। सिंपल सेंटेंसेस की 5 एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स की और कंपाउंड, तीनों की 5 एग्जांपल्स अलॉन्ग विद देयर डिफरेंसेस सबमिट करानी है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you so much.